Good evening, students. Welcome to the second part of chapter 4 Civics Working of Institution. In the last video, we have seen that an official memorandum was passed by the group of functionaries, जिसमें President, Prime Minister, Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, and that official memorandum were regarding the 27% reservation in the government jobs. Now we will see कि what was the reaction, what was the dispute that took place due to this official memorandum, and how the entire thing was implemented and how the particular decision was in फॉर्मुलेशन. सिर्फ एक रात का गेम नहीं था वो कि रातों रात रिजर्वेशंस मिल गए थे लोगों को. इट वॉज अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट विच हैज़ बीन फॉलोड. तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें फॉलो अप हुई थी, एंड फाइनली कैसे एक सर्कुलर जो है वो लॉ बन सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. The office memorandum was the culmination of long chain of events. The government of India had appointed the second backward classes commission in 1979. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था 1979 में. It was headed by B.P. Mandal, hence it was popularly called as the Mandal Commission. Because the head of that commission was B.P. Mandal, so it was popularly known as the Mandal Commission. तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि who was the head of the second backward class commission in 1979 or why this commission was popularly called as Mandal Commission. So it was popularly called as Mandal Commission because the name of its head was B.P. Mandal. Now, what was the task of this particular commission appointed by the government? It was asked to determine the criteria to identify the socially and backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. तो इस पर्टिकुलर कमीशन का काम ये था कि उनको सोसाइटी में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं और क्या क्या स्टेप्स उनके लिए हम लोग ले सकते हैं ताकि हम उनको सोसाइटी में थोड़ा सा एडवांसमेंट दिला सकें, बिकॉज दे वर वेरी backward, and so something has to be done from the government side to make them come to the forefront. So this work was given to this particular Mandal Commission to identify who exactly should be in the list of socially and backward classes, then accordingly what steps should be taken from the government side to uplift them. दिस वॉज अ पर्टिकुलर वर्क ऑफ द मंडल कमीशन. इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वाई मंडल कमीशन वॉज सेटअप. तो आंसर विल बी टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980. अपॉइंटमेंट हुआ था 1979 में. इट वर्क फॉर एन एंटायर ईयर और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट फाइनली प्रेजेंट की. एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस. बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी उन्होंने दिए थे. उसमें से एक रिकमेंडेशन था दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस. तो अभी जो हमने ऑफिशियल मेमोरेंडम में सर्कुलर में जो देखा था कि जो लॉ बना था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था. इट वॉज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन दैट in order to uplift the social and backward classes, 27% of government jobs should be reserved for these particular classes. The report and recommendations were discussed in the parliament. For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commission's recommendation. Till now, it is just a recommendation. Recommendation बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग देते हैं. जब तक वो ऑफिशियली पास नहीं हो जाती तब तक वो लॉ या एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है. तो अभी तक ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, अभी तक ये पास नहीं हुआ है. बहुत टाइम तक इसका पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है. लोगों ने डिमांड किया कि इसको क्या कर देना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए. फिर एक इसमें नया एक एस्पेक्ट आ जाता है, लोकसभा इलेक्शन. Then came the Lok Sabha election in 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. Election manifesto होता है जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में आने से पहले एक अपना अनाउंसमेंट लेटर प्रेजेंट करती है जिसमें वो सारी चीज़ें बताती कि अगर हम लोग
जीत जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जीतेंगे तो हम गैस के रेट्स कम कर देंगे, हम स्टेशनरी आइटम्स के रेट्स कम कर देंगे, हम टूरिज़्म सेक्टर को इन्हांस करेंगे, हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को इन्हांस करेंगे। ठीक उस तरह से जनता दल जो थी उसने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर किया था कि अगर हम वोट में हम पावर में आ जाएंगे तो हम मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो थी वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर गई थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्या मिल गए थे, वोट्स मिल गए थे, एंड दे सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। The Janata Dal formed the government after this election. Its leader VP Singh became the prime minister. और उस जनता दल के जो लीडर थे उनका नाम था वीपी सिंह. He became the prime minister. Several developments took place after that, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे promises किए थे, तो now as they were in power तो बहुत सारे उन्होंने advancements किए भी थे. The President of India, in his address to the Parliament, announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission. अब recommendation कैसे एक ऑफिशियली एक्ट बन रहा है, यहाँ पे सारे प्रोसेस दिए हुए हैं. पहले क्या था, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने एड्रेस में, जब उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस दिया तो उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को क्या करना चाहती है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है. द फर्स्ट स्टेप वॉज टेकन बाय प्रेसिडेंट. On 6th August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. President के बाद Union Cabinet ने भी डिसाइड किया कि फॉर्मली डिसाइड किया कि दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन. देन नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर सारे लोग इन्वॉल्व हैं. दीज आर द डिफरेंट फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन मेकिंग रिकमेंडेशन इनटू एन एक्ट और अ लॉ. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the houses of Parliament. फिर next day प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट के थ्रू अपने डिसीजन को पास किया दोनों हाउसेज में, लोकसभा एंड राज्यसभा. द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग. क्योंकि वो रिलेटेड है इस डिपार्टमेंट से, तो वो जो स्टेटमेंट है हाउसेज में पास होने के बाद वो फिर फाइनली गया किसके पास, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. The senior officers of the department drafted an order in line with the cabinet decision and took the minister's approval. अब senior officers को क्योंकि approval मिल गया है तो उन्होंने उस order का उस recommendation को finally act में या law में बनाने के लिए एक drafting किया. An officer signed the order on behalf of the union government. This was how OM number 36012/31/90 was born on 13th August 1990. तो इस तरीके से बहुत लंबे टाइम तक उसको फॉरवर्ड कराने के उसमें इंतज़ार में मंडल कमीशन ने पहले अपनी रिकमेंडेशन दी, फिर जनता दल पार्टी ने अपना गवर्नमेंट बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन. तो फाइनली जब वो पावर में आ गए तो उन्होंने उनके रिकमेंडेशन को पास कर दिया. तो इस तरीके से जो एक रिकमेंडेशन थी दैट वाज फॉर्म्ड इनटू एन एक्ट और अ लॉ. अब वो ऑफिशियली पास हो चुका है, अब वो रिकमेंडेशन नहीं है, अब वो क्या हो गया है, एक एक्ट बन गया, लॉ बन गया. For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. Newspapers and magazines were full of different views and opinions on this issue. अब इस पे क्या था, कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग अगेंस्ट में थे. The people who belonged to the SEBC class, they were like कि ठीक, बहुत अच्छा है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू अपलिफ्ट आवर सेल्फ. बट जो इसके अगेंस्ट में थे, जो इस कम्युनिटी में बिलोंग नहीं करते हैं, दे वर फीलिंग लाइक नाउ हमें चांस नहीं मिलेगा, इवन इफ़ वी आर क्वालिफाइड वी विल नॉट गेट द चांस टू क्लेम फॉर दोज जॉब्स. तो एक तरह से कहीं ना कहीं मिक्स रिएक्शन था, समवर इन फेवर ऑफ इट, समवर इन अगेंस्ट ऑफ इट. इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट. और काफ़ी वायलेंट लेवल पे इसका रिएक्शन था, छोटा मोटा इसका प्रोटेस्ट नहीं था, काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ था, जगह जगह काउंटर प्रोटेस्ट हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वायलेंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था. People reacted strongly because the decision affected thousands of job opportunities. Some felt that existence of inequalities among the people of different castes in India necessitated job reservations. They felt that this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in the government employment.
जो लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इनका मानना था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कास्ट इनइक्वालिटी है तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि अब इसके थ्रू हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अपने रिप्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे. दिस वॉज द ओपिनियन ऑफ दोज पीपल हु वर इन फेवर ऑफ दिस act. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities. They would be denied jobs even though they could be more qualified. और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस SCBC क्लासेस. दे फील दैट इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में डिसएडवांटेज मिल जाएगा. दे वोंट बी एबल टू क्लेम फॉर दैट 27% शेयर, हालांकि वो उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड भी हो सकते हैं. Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity. अब दो सेक्ट में लोग बढ़ गए हैं, वन इन फेवर वन इन अगेंस्ट. तो एक जो नेशनल यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही थी, और कुछ लोग को लग रहा था कि इसकी वजह से जो एक नेशनल यूनिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, और लोगों के बीच में कास्ट इनइक्वालिटीज़ की फीलिंग्स अब जनरेट होने लगी है. हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट. अब ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ये फाइनली कौन रिजॉल्व करेगा, कैसे उसका ये जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट है, जो ये कंट्रोवर्सी है, ये कैसे ख़त्म होगी. दिस वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो.